Hello everybody. So in this video I'm gonna talk about the feeling of cringe. Something जो कि तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कि तुम्हें वीडियो के एंड में रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है जानना. फीलिंग ऑफ क्रिंज एक ऐसा इमोशन है विच इज़ सो प्रिविलेंट नाउअडेज. लोग हर कोई दूसरा बंदा इसको देख के मुझे क्रिंज फील होता है, ये चीज़ क्रिंजी है, ये क्रिंजी वीडियो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाँ, so before defining the cause of cringe, let's observe where we actually feel cringe. Where do you exactly experience the feeling of cringe? ठीक है. Looking at your former self, your old Instagram, your old primitive Facebook posts, ठीक है, reading your old chats, and interestingly feeling sense of cringe when someone likes you, or when you look at perfectly normal couple or any kind of romantic or intimate scene, तब तुम्हें लगता है क्रिंज फील हो रहा है मेरे को, या ये बहुत क्रिंजी हरकत है. whenever you see someone getting intimate or romantic with someone else, suddenly you start feeling cringy about it. And even self cringing is a thing. It is very important because self cringing can hamper your self esteem. You constantly judge your own actions, embarrass yourself, make yourself awkward, then start feeling cringy about yourself. This is called self cringing. Self cringing can actually hamper your self esteem in a long run, which can lead to corrupt self evaluation. Self evaluation मतलब कि मैं खुद को कैसे देखता हूँ, मैं खुद को evaluate कैसे करता हूँ, मेरा perception खुद को लेके क्या है. Now the primary question, why do we feel cringe? ठीक है, listen carefully, no one gonna give you this definition. ठीक, people usually refer feeling of cringe as second hand embarrassment, but ये सिर्फ एक जर्मन ट्रांसलेशन है. ये एक जर्मन ट्रांसलेशन की इंग्लिश ट्रांसलेशन है सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट, विच सॉल्व्स नथिंग. ठीक है, अब सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट में क्या हो गया, बस तुमने डिफाइन कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव वे में और इजी टू अंडरस्टैंड वे में बोल दिया कि क्रिंज इज सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट. बट देयर इज़ मच मोर इन टू इट. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग इमोशन है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, लिसन वेरी केयरफुली. क्रिंज इज करप्ट एम्पैथी. नाउ व्हाट इज एम्पैथी? Empathy is the temporary adaptation of someone else's cognitive abilities, perceptions, and worldview. It means putting yourself in their place and looking at their world through their perception, through their beliefs and point of view. Then you are empathizing. तुम अपने आप को किसी और की जगह पे रखते हो, अपने परसेप्शन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना वर्ल्ड व्यू पीछे छोड़ते हो, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसके परसेप्शंस और बिलीव्स को पकड़ते हो और उसके लेंस के थ्रू दुनिया देखते हो. मीन्स तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ एम्बेरसमेंट, डिस्कस, शेम, इंटीमेसी, वो सब तुम्हारी है, तुम्हें इसके थ्रू देखना है. नाउ यू आर एम्पैथाइजिंग विद देम. सो नाउ दैट आई हैव सेड क्रिंज इज करप्ट एम्पैथी, इट मीन्स you have placed yourself in their position but incompletely, as you haven't fully embraced their perception, cognitive abilities and worldview. Now try to understand. As a result, you are attempting to experience, not consciously although, you are attempting to experience their experience through your worldview, still holding your own beliefs, perceptions and cognitive abilities. So whenever you feel cringe, you are essentially viewing their world through your definition of embarrassment, shame, disgust, intimacy. So जब भी तुम्हें cringe फील होता है, ये तुम्हें तुम्हारे परसेप्शन और तुम्हारे वर्ड व्यू के बारे में बताता है. एक्चुअली ये तुम्हारी डेफिनेशंस ऑफ एम्बेरसमेंट एंड डिस्गस्ट के बारे में बताता है, ना कि उनकी. तो क्रिंज बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत सब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड टर्म नहीं है. सो क्योंकि अब हमें डेफिनेशन पता है, लेट्स रिविजिट ऑल दोज इंस्टेंसेस आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस वीडियो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड देम. द फीलिंग ऑफ क्रिंज व्हेन यू लुकिंग एट योर पास्ट सेल्फ. ठीक है, रीडिंग योर ओल्ड चैट्स, व्यूइंग योर ओल्ड प्रिमिटिव, एज आई हैव सेड, प्रिमिटिव इंस्टाग्राम और फेसबुक की पोस्ट. यू आर प्लेसिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ योर ओल्ड सेल्फ, बट विथ करंट वर्ल्ड व्यू, बट विथ प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंट कॉग्निटिव स्किल्स, प्रेजेंट परसेप्शन. तुम ये नहीं देख रहे कि फ्रॉम वेयर ही और शी इज़ कमिंग. तुम्हारा ओल्ड सेल्फ वो कहाँ से आ रहा है, उसके पास थोड़ा ना ये वाला परसेप्शन जो तुम अभी होल्ड करते हो. सो यू आर नॉट एबल टू ग्रेस्प द माइंडसेट ऑफ योर फॉर्मर सेल्फ, योर ओल्ड सेल्फ, लीडिंग टू अ डिस्टॉर्ट वे ऑफ एम्पैथाइजिंग. तुम अपने ओल्ड सेल्फ, अपने पास्ट सेल्फ से डिस्टॉर्शन के साथ एम्पैथाइज कर रहे हो. तुम समझ नहीं रहे वो कहाँ से आ रहा है.
इस वजह से तुम्हें क्रिंज फील हो रहा है, क्योंकि तुम अभी के वर्ड व्यू से उसको देख रहे हो. दिस डिस्टॉर्शन इज वट मेक्स यू फील क्रिंज. नाउ फीलिंग क्रिंज व्हेन समवन लाइक्स यू, और फीलिंग क्रिंज व्हाइल लुकिंग एट रोमांटिक थिंग्स और परफेक्टली नॉर्मल कपल, इट्स अ थिंग बाय द वे. अभी क्यों होता है? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ प्रेटी इंटरेस्टिंग. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. इट स्टेम्स फ्रॉम योर इश्यूज विद इंटीमेसी एंड योर डिस्कम्फर्ट विद इट. It's not about them. It's never about them. But rather about your worldview and your perception of intimacy. See, whenever you feel cringe in response to someone else interested in you, it's likely because जब तुमने किसी को पसंद किया होगा, जब तुमने अपना इंटरेस्ट वाली फीलिंग आई भी होगी, तो तुमने अपने आप को जज करा होगा, तुम्हारे अंदर ऑकवर्ड फीलिंग आई होगी, तुम डिस्कम्फर्ट हुए होंगे. तो अब तुम क्या कर रहे हो, या फिर तुम अनश्योर हुए होंगे अबाउट योर इंटरेस्ट. अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम सामने वाले के इंटरेस्ट को, अपने आप को उसकी जगह रख रहे हो, और अपना ही डिस्कम्फर्ट, अपनी ही ऑकवर्डनेस, अपनी ही एम्बेरसमेंट उसके थ्रू फील कर रहे हो. इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि जब कोई तुम्हें लाइक करने लगता है तो तुम्हें क्रिंज फील क्यों होता है, क्योंकि इट्स योर ओन इश्यूज विद इंटीमेसी. इट इंडिकेट्स दैट देयर इज समथिंग ऑफ विद योर ओन वर्ड व्यू ऑफ इंटीमेसी. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. मीन्स द क्रिंज रिएक्शन इमर्जेस बिकॉज यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ इन टू देयर सिचुएशंस थ्रू योर ओन डेफिनेशन ऑफ इंटीमेसी. मीन्स इन एक्चुअलिटी यू आर जजिंग योर सेल्फ, विच लीड्स टू फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट, हैंस सेंसेशन ऑफ क्रिंज. अब आ जाते हैं सेल्फ क्रिंजिंग पे. इट्स एक्चुअली अराइज आउट ऑफ फियर ऑफ जजमेंट, क्रिटिसिज्म और फॉल्टी सेल्फ इवेल्युएशन और टू मच ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन. थ्रू सोशल परसेप्शन की दुनिया क्या सोचती है, दुनिया कैसे देखती है, तुम भी अपने आप को वैसे ही देखते हो, थ्रू दी परसेप्शन ऑफ सोसाइटी. ठीक है. दोज हु हैड क्रिटिकल पेरेंटिंग. अब ये होती किस में? सी, दोज हु हैड क्रिटिकल पेरेंटिंग एंड हुज पेरेंट्स यूज टू क्रिटिसाइज एंड जज देम अलॉट. देयरफॉर एज अ चाइल्ड यू यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स वर्ड व्यू. सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि यू एंड अप डेवलपिंग अ हार्श इनर क्रिटिक. एक इनर क्रिटिक डेवलप हो जाता है एज यू ग्रो ओल्डर, हु इज़ कॉन्स्टेंटली जजिंग यू, who is constantly judging your actions, and the fear of criticism, judgment becomes your constant companion. Your perception would be that you need to be perfect in order to be accepted and loved, because that's the way you have been brought up. As a result, especially those individuals who are perfectionists tend to analyze themselves a lot and set high standards for their behavior or how they present themselves in specific situations. अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते, फिर उनका इनर क्रिटिक उनको क्रिटिसाइज़ करता है, उनको जज करता है, उनको एम्बेरस करता है और उन्हें क्रिंज फील होता है. तो इस पूरे साइकिल को वो समझ जाते हैं. फिर वो करते क्या है कि हर एक्शन से पहले सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि ये एक्शन सही भी है या नहीं, इसकी नज़र में, उसकी नज़र में, मेरी नज़र में. ये है प्रॉब्लम. इनर क्रिटिक का रिजेक्शन नहीं फेस करना चाहते, क्योंकि इनर क्रिटिक बनाया किसने? तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारी अपब्रिंगिंग की वजह से आया है वो. और सेल्फ क्रिंजिंग से तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लो होने लगता है बाय द टाइम. नाउ व्हाट यू कैन डू अबाउट इट? इंटरेस्टिंगली, द एंटीडोट इज एम्पैथी. एम्पैथाइज वेल एंड अंडरस्टैंड एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू. द डेफिनेशन ऑफ एम्बेरसमेंट एंड शेम इज़ यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल. तो जब भी तुम्हें क्रिंज फीलिंग आती है किसी को देख के, इट इज़ बिकॉज तुम एम्पथाइज नहीं कर पा रहे, यही है रीज़न. और रही बात तुम्हारे ओल्ड सेल्फ या फॉर्मर सेल्फ की, इन दिस केस एज वेल लुक एट योर सेल्फ, योर ओल्डर सेल्फ विद एम्पैथी. व्हाट वाज योर माइंड सेट बैक देन, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, परसेप्शन एट दैट टाइम. अगर तुम उसे समझ जाओगे तो तुम्हें उसके एक्शंस जस्टिफाई कर पाओगे. सिंपल इज दैट. तुम्हें क्रिंज फील नहीं होगा. थर्ड थिंग, वर्क ऑन योर इश्यूज विद इंटीमेसी विद योर थेरेपिस्ट. If you feel uncomfortable when someone likes you, you cringe at the sight of couples, remember that nothing is objectively wrong with them. You are just projecting your own shame, your own embarrassment, your own definition of disgust and everything onto them. Work on it. Last thing, address the feeling of perfectionism. Because people who pursue perfectionism, they never question their own worldview. They think their definition of embarrassment and disgust is perfectly okay, is perfectly fine. It's word which is corrupt. दुनिया है जो बेवकूफ़ है, हम तो, हमारा परसेप्शन बिल्कुल ठीक है. See, it's all subjective. You cannot generalize things for anybody that they should be that way. This is the only perfect way to be.
ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये कुछ नहीं होता, ठीक है। इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर हेड। परफेक्शनिज्म यूजुअली अराइज फ्रॉम द फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, ठीक है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ जजमेंट, दीज आर द फेयर्स यू नीड टू वर्क ऑन। सो या दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप इस वीडियो ने हेल्प करा होगा तुम्हें अपने आप को समझने में, सेल्फ इवेल्युएशन में, सेल्फ एनालिसिस में, सेल्फ रियलाइजेशन में। और अगर तुम्हारे दोस्त या फैमिली या फ्रेंड्स जिनको तुम्हें लगता है कि ये वीडियो उनके लिए बेहतर है, डू शेयर विद देम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।